ہوں اور اس دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ یہاں پر میرے عزیزوں داؤد کی ترقی کا جو دوسرا راز تھا، پہلا راز تو یہ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا، خدا کی عبادت کرتا، اور دوسرا راز میرے عزیزوں یہ تھا کہ داؤد جو ہے وہ جو خدا اس کی زندگی میں بڑے کام کرتا تھا وہ اسے کبھی نہیں بھولتا تھا، وہ ہمیشہ ان باتوں کو یاد کرتا تھا کہ میرے خدا نے مجھے اس جنگ میں فتح دی ہے، میرے خدا نے مجھے کیسے اٹھایا ہے اور کہاں تک لے کے آیا ہے، وہ کبھی بھی خدا کے کاموں کو نہیں بھولتا۔ آج میرے عزیزوں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اگر ہم سائیکل پر ہوں تو ہم گاڑی پر آ جائیں تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اب گاڑی والے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں پاسٹر اب ہمارا بہت لیول اونچا ہو گیا، خدا نے سن لیا، اب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا بندہ جو داؤد تھا وہ کہتا ہے میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر کیا کرتا ہوں، دھیان کرتا ہوں۔ وہ خدا کے کاموں کو یاد کرتا، خدا کی شکر گزاری کرتا تھا۔ یہ دوسرا راز تھا اس کی لائف میں جو وہ کرتا اور خدا نے اسے سرفرازی بخشی۔ آگے میرے عزیزوں اگر ہم دیکھیں پورے 141 سے اس کی 3 آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ یہاں پر میرے عزیزوں خدا کا بندہ داؤد خدا سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے خدا میرے ہونٹوں اور زبان پر اپنا پہرا نگہبانی بٹھا تاکہ میرے منہ سے کوئی کفر کی بات، کوئی گھمنڈ کی بات، کوئی تکبر کی بات نہ نکلے، بلکہ میرے خدا ہمیشہ میرے ہونٹوں سے دوسروں کے لیے اچھے الفاظ نکلے۔ لیکن میرے عزیزوں آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے میں پراؤڈ آ جاتا ہے، غرور گھمنڈ آ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اگر ہم دیکھیں کلام میں تو خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹوں اور زبان پر اپنا پہرا نگہبانی اٹھا تاکہ میں کسی کے خلاف گناہ نہ کروں، بلکہ خدا میرے ہونٹوں سے تیرے بڑے کام ہی بیان ہو، تاکہ میرے خدا میرے ہونٹوں سے تیری حمد و ثنا ہی ہو، میں کسی کے بارے میں کچھ برا نہ کہوں، میں کسی کی تکفیر نہ کروں، کسی پر لعنت نہ کروں، بلکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا دین چاہتا ہوں، پھر تو میرے ہونٹوں اور زبان پر اپنا پہرا بٹھائے رکھ تاکہ کیا ہو، میں جو ہے تیری مرضی بولوں اپنے منہ سے، تیرا کلام اپنے منہ سے بولوں، کسی کو تانا نہ دوں، کسی کو بری بات نہ کہوں۔ اس کی یہ خدا سے درخواست تھی۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں میرے عزیزوں تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ تیری ترچھی زبان جو جس کی ہوتی ہے وہ چھیدتی ہے، تیری ترچھی زبان پر جو انسان ہوتا ہے اس کے لفظ جو ہیں چھیدتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں داؤد نے اس لیے خدا نے اسے سرفراز کیا کہ وہ خدا سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ میں اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کچھ غلط نہ کہوں، میری زبان ہمیشہ خدا کو مداحی کہے، ہر ایک کی عزت کرے۔ ہاللیلویا۔ یہ اگر ہم آگے دیکھیں میرے عزیزوں تو اگر ہم سب کچھ میں اور اس کی 8 میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے اے لوگوں ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یہاں پر میرے عزیزوں خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، خدا پر توکل کرنا ہے، خدا پر آس رکھنی ہے، کیونکہ خدا پر آس رکھنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں اگر ہم داؤد کی زندگی میں دیکھیں میرے عزیزوں جب وہ مسیح ہوا تو اس کے بعد 13 سال کے بعد وہ بادشاہ بنا، 13 سال کے بعد وہ سرفراز ہوا۔ اسی وقت وہ بادشاہ کے تخت کے اوپر نہیں بیٹھ گیا تھا بلکہ 13 سال اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑی کشتی لڑی، ایک بہت بڑی اسے پرابلمز کا سامنا تھا کیونکہ ساؤل جو ہے اس کی جان کے در پہ تھا، ساؤل جو ہے اسے قتل کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ میرے بعد بادشاہ نہ بن جائے۔ لیکن میرے عزیزوں داؤد کی ہر ایک پرابلم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جب بھی ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں زبور کا تو ہمیں خدا کی آس رکھنے کے بارے میں، خدا پر توکل رکھنے کے بارے میں، خدا کے پر بھروسہ رکھنے کے بارے میں داؤد کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس نے ہتھیار نہیں چھوڑے، اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں اب بس ہو گئی ہے، اب میں اس راستے سے ہٹ جاؤں۔ لیکن میرے عزیزوں خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا
जिंदगी बयान करता है कि हर वक्त लोग खुदा पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल खुदा के सामने खोलो। वो किसी इंसान के सामने नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि खुदा के सामने जो है अपने दिल का हाल खोलो, क्योंकि वही हमारी पनाह है। अगर हम देखें दाऊद की जिंदगी में मेरे अजीजों, तो जब उसका बेटा अबीसलोम जो है उसने जब हमला कर दिया दाऊद के ऊपर, तो दाऊद जो है सब कुछ छोड़कर चला गया और अबीसलोम जो उसका बेटा था वो उसकी जगह पर आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, इतनी मुश्किल दौर में भी क्या हुआ, दाऊद ने खुदा पर तवक्कल करना ना छोड़ा, उसने खुदा पर भरोसा रखा, खुदा की आस रखी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर मेरे अजीजों क्या हुआ, अबीसलोम जो था वो तो कत्ल हो गया, दाऊद का फिर खुदा ने सरफराज किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा पर तवक्कल रखते हैं, खुदा पर आस रखते हैं, तो वो हमें सरफराज करता है, वो हमारे सीख को ऊंचा करता है, वो हमें गिरने नहीं देता है, बल्कि हमें सरफराज ही रखता है और तरक्की पर तरक्की बख्शता है। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम ज़बूर 47 उसके 4 आयत में देखें, तो वहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। यहाँ पर मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, और अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमारी बहुत सारी दरख्वास्त है खुदा के आगे, खुदा हमें गाड़ी दे दे, खुदा हमें मकान दे दे, खुदा हमें दूसरे मुल्क भेज दे, खुदा ये कर दे वो कर दे। लेकिन दाऊद की दरख्वास्त क्या है खुदा के आगे, दाऊद की दरख्वास्त खुदा के आगे मेरे अजीजों ये है कि मैं हमेशा खुदा का ही तालिब रहूं और उम्र भर उसके घर में रहूं। हालेलुया हालेलुया। ये बात है मेरे अजीजों जो खुदा को पसंद आई दाऊद में। दाऊद एक बादशाह था, वो ये भी खुदा से कह सकता था मुझे और सल्तनतें दे दे, मुझे और फतह दे, मैं और बादशाहों के मुल्कों पर कब्जा कर लूं, मुझे मालो दौलत दे दे, मुझे बहुत ही ज्यादा और अमीर बना दे, मुझे बहुत और भी बड़ा बादशाह बना दे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के सामने दाऊद की एक ही दरख्वास्त थी, और वो ये दरख्वास्त थी कि मैं खुदा का तालिब रहूं, उम्र भर उसके घर में रहूं। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात की जरूरत है, हमें खुदा के कदमों में आने की जरूरत है, क्योंकि दाऊद का जो खुदा का बंदा है वो इसलिए तरक्की पर तरक्की कर रहा था, खुदा उसके साथ इसलिए था क्योंकि वो खुदा के कदमों में रहना पसंद करता था। हालेलुया हालेलुया। अगर हम देखें मेरे अजीजों, तो दाऊद जो है कलाम मुकद्दस की एक बहुत मशहूर हस्ती है मेरे अजीजों। अगर हम उसकी जिंदगी पर गौर करें मेरे अजीजों, तो वो खुदा की शुक्रगुजारियां करता है। अगर हम ज़बूर 36 का मुताला 136 का मुताला करें, तो वहाँ पर मेरे अजीजों हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, तो दाऊद है वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, हर एक नेमत में खुदा की शुक्रगुजारी करता है। अगर हम आज एक बादशाह की जगह पर आ जाए तो शायद हम खुदा की शुक्रगुजारी ना करें, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो कहता है और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। खुदा ऐसे ही नहीं उसके साथ था, खुदा इसलिए उसके साथ था, वो खुदा के कदमों में रहता, वो खुदा से प्यार करता, वो खुदा से लिपटा रहता, वो हर बात में चाहे दुख हो खुदा पर तवक्कुल रखता
यही वजह है मेरे दोस्त कि जो है खुदा का कलाम भी फिर क्या कहता है, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। अगर मेरे अजीजों हम पैदाइश और उसका 5 बाब का मुताला करें तो वहाँ पर हमें खुदा के बंदा हनूक के बारे में मिलता है मेरे अजीजों। वहाँ पर हम अगर देखें तो वहाँ पर खुदा का हनूक जब 65 बरस का था उससे फिर मतुसला पैदा हुआ और उसके बाद वो 300 बरस तक खुदा के साथ चला गया और फिर क्या हुआ, वो गायब हो गया। कैसे वो ऐसे तो नहीं गायब हुआ, 300 साल वो खुदा के साथ चला और फिर क्या हुआ, खुदा ने सिखा दिया, उसने मौत का मजा ना चुका। हालेलुया। इसी तरह मेरे दोस्तों अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो हमें खुदा के बंदा नूह के बारे में मिलता है मेरे अजीजों। जब ये कब नई दुनिया शुरू हुई है, जब खुदा ने सारी दुनिया को खड़ा किया था, उसमें से खुदा का बंदा नूह और उसके जो है घर वाले ही बचे थे। और अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो पैदाइश 6 बाब में हमें मिलता है नूह का नसबनामा। और क्या था, नूह क्या था उसमें ऐसा कि वो खुदा के साथ साथ चलता था, वो मर्दे रास्तबाज था। हालेलुया। और अपने जमाने के लोगों में क्या था, बेऐब था। आज मेरे अजीजों में क्या करने की जरूरत है, आज हमें ये करने की जरूरत है कि हमें खुदा के साथ साथ चलने की जरूरत है। अपने जमाने के लोगों में बेऐब होने की जरूरत है और क्या होने की जरूरत है, हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, लिपटे रहने की जरूरत है। तो फिर क्या होगा, खुदा जैसे अपने कलाम में कहता है दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसके साथ था, उसी तरह फिर खुदा हमारे बारे में भी कहेगा इकरा तरक्की करती गई क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, मीरा तरक्की करती गई क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, पास्टर साहब तरक्की करते गए क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। हालेलुया। आज हमें क्या करने की जरूरत है मेरे जीतो, खुदा के हुक्मों पर चलने की जरूरत है, खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है मेरे अजीजों। तो आज हमारे लिए भी खुदा बोलेगा क्योंकि मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके दाहिने हाथ हूँ, इसे कभी जुम्बश ना होगी और इसकी ताकत बढ़ती जाएगी जैसे दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। हालेलुया। और दाऊद का अंदाज क्या था मेरे अजीजों, अगर हम देखें खुदा के बंदे, अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो किसी के बारे में भी ये नहीं लिखा गया खुदा के कलाम में। बस एक खुदा का बंदा दाऊद था जिसका अंदाज क्या था, खुदा ने क्या कहा था, खुदा ने कहा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। हालेलुया। दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक था। हालेलुया। तो वो खुदा के सामने झुकता था, खुदा की बड़ाई करता था, खुदा के हुक्मों पर अमल करता था। इसी वजह से मेरे तो खुदा के दिल के मुआफिक था। अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो हमें जो है दाऊद के बारे में ये खुद स्टेटमेंट खुदा ने दी है। उसने कहा कि मुझे दाऊद मेरा जो है खातम मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है और उसे जाके मसा कर और वो आगे कौम बनी इसराइल की रहनुमाई करेगा। हालेलुया। आज हमें मेरे खुदा के दिल के मुआफिक बनने की जरूरत है, खुदा के साथ चलने की जरूरत है। तो आज हम भी दाऊद की तरह तरक्की पर तरक्की करेंगे और खुदा कहेगा मैं अपने बेटे के साथ हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ और फिर हम भी तरक्की पर तरक्की करेंगे। हालेलुया। यही बात है मेरे अजीजों, जब दाऊद की जिंदगी में खुदा को पसंद आई और खुदा ने उसे एक जो है चरवाहे से उठाया और उसे खुदा ने क्या किया, कौम बनी इसराइल का हाकिम बनाया। और अगर हम उसकी जिंदगी में देखें मेरे अजीजों तो उसके पास बहुत सारा मालो दौलत था, लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे कि हमने पढ़ा और उसकी हैकल में इसमें साल किया करूँ। आज कौन है जो खुदा की हैकल में आने के लिए बड़ा जो है दाऊद की तरह स्टेटमेंट देगा कि मैं खुदा की हैकल में रहना चाहता हूँ, मैं खुदा के घर में रहना चाहता हूँ। कोई भी नहीं है मेरे अजीजों, लेकिन जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जिनमें खुदा की मोहब्बत है, जिनके बारे में खुदा गवाही देता है कि मैं इसके साथ हूँ, वो आज भी हम सब में जलती मशलों की तरह नजर आते हैं। हालेलुया। उन्हें कभी जुम्बश ना होगी, वो दौड़ेंगे तो कभी ना थकेंगे क्योंकि खुदा उनके साथ है, खुदा उनके दाहिने हाथ है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों हमें इस बात की जरूरत है, इस बेदीनी के दौर में हम क्या करें कि हम खुदा
کرے. تو جیسے پھر نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا تو ساری دنیا غرق ہو گئی. خدا نے اسے اور اسے کے گھرانے کو بچایا. آج خدا ہمیں بھی بچائے گا. ہاللیلویا. اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں گے. ہاللیلویا. یہ ہے میرے عزیزو خدا کی وہ پاور جو ہمیں دعا کے ساتھ ملتی ہے. خدا کا ساتھ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ خدا کا ساتھ ہمیں ایسے مل سکتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جھکیں, اس کی طرف رجوع لائیں. خدا کا کلام کہتا ہے, خدا خود اپنے کلام میں یسایہ کے صحیفے میں کہتا ہے تم میری طرف رجوع کرو تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. رب الافواج یہ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ, میں بھی تمہاری طرف آؤں گا. آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں داؤد کی طرح بننے کی ضرورت ہے, خدا کے بندوں کی طرح بننے کی ضرورت ہے, عبادت کرنے کی ضرورت ہے, پرستش کرنے کی ضرورت ہے, روزے رکھنے کی ضرورت ہے, اس کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. خدا بھی ہمارے بارے میں کہے گا یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی میرے دل کے موافق ہے. ہاللیلویا.